Good morning, dear student. I welcome you to our chemistry classes. And today in this class, we will discuss one of the important topic of your chemistry, and the topic is your atomic structure. This is the topic that today we are going to discuss, and this is a very important topic. Remember, so the question is that why we are discussing about atomic structure, or why I am saying this topic is very important in chemistry. Let me recall you that in my first class I had explained you that chemistry is the branch of science that deals with the study of matter. Chemistry is the branch of science that deals with the study of matter. And I have also discussed that this matter consists of, or this matter is made up of elements. A matter elements manku neiki tiyari heichi. This I have already discussed. And this element consists of some identical particles which are called atoms. I hope you all are recalling. This is the things that we have discussed in our first class. These identical particles are called atoms. So you could see here that chemistry deals with study of matter. Matter consists of elements, and elements consist of atoms. This is a very fundamental thing. So to know matter, one has to know about the element, and to know about the elements, one has to very clear about the atoms. Are you getting my point? So to get information about the matter, ba matter को जानिबा पाई हमको atoms को प्रथमे जानिबा को पड़िबो. So that's why this topic is very important as far as the chemistry concerned. So before starting any topic, a student has to very clear that why he is reading that topic, or why he or she is reading that topic. Otherwise, it will be not interesting. So to know our matter, we have to be first clear about the atom. That's why our important topic is atomic structure. And you will recall, I have explained already, if it is a sodium element, then these are called sodium atoms. If this is called magnesium element, then these are called magnesium atoms. If these are calcium element, these are called calcium atoms. I have already explained. If this is the atomic number of sodium element is 11, then the atomic number of this atom is also 11. If atomic number of magnesium is 12, then it is a magnesium atom, and the atomic number will be 12 for this atom. So it is very necessary to know about the atom. If you are not clear about the atom, then you are not clear about element, and also you are not clear about the matter. Ultimately, you have doubt in chemistry. That's why a student has to very clear on this particular word atom. Atom विषय गोटे पिला बहुत clear हेबा जरूरी है. That what is this atom? Is it clear to all? Clear. तो एटम कहा के कुआ हसी एटम विषय इंफॉर्मेशन काना सीटा जानवाटा होचे एटॉमिक स्ट्रक्चर रो मोटो. So why we are reading atomic structure? We are reading atomic structure to know detail about the atom, which is a simple form of our element. Is it clear? Element रो simple form होची atom. सेथि पाई हमें atomic structure पढुछु so that we can collect more information about the atom. हमें एटम विषय रे बहुत इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करि पारमा एटॉमिक स्ट्रक्चर माध्यम रे. इज इट क्लियर? We will proceed in this topic in a way that let me rub it. Sorry for late. ये लिवर में भूली कपड़ा पाऊँ नथली. Okay.
So let's start with this atom. First thing, what is an atom? Atom कहा विक्वासी आमे आगरू ही कोई सारी जमुई if this is an element, this element consists of some identical particles and these identical particles are called your atom. तो हमें एलिमेंट एटम के लेके तैयारी है। Is it clear? First thing about the atom will be atom is an simple form. कहार simple form गोटे एलिमेंट रो simple form of an element. गोटे एलिमेंट रो simple form हैला atom. One more thing we will add here, which may or may not have independent, which may or may not have independent existence. I will explain what is the meaning of this. So an atom is a simple form of an element which may or may not have independent existence. यार meaning का ना बुझो. Suppose I am saying this is an hydrogen element. मु कहली ये गोटे हाइड्रोजन एलिमेंट अछि. तो तार माने हला से हाइड्रोजन एलिमेंट भितरे बहुत गुडे स्मॉल आइडेंटिकल पार्टिकल थिबो. और से जन बहुत स्मॉल आइडेंटिकल पार्टिकल रहबा से आइडेंटिकल पार्टिकल मान को हमें हाइड्रोजन एटम कहूछु. वी आर कॉलिंग देम हाइड्रोजन एटम. Let's suppose similar example for the iron element. Now in this iron element, whatever the small particles will be there, that small particles are also called iron atom. There is no doubt with this. Clear? So this atom is also the simple form of this element and this atom is also the simple form of this element. So now what is the meaning of this? Which may or may not have independent existence. यार meaning हला कहा. Suppose मुड़ा hypothetical case से consider करूँचे. हमें ए atom टा को बाहर को आने वाले की try करना. We will try to bring outside this atom, or outside we will try to bring this atom from this hydrogen element. Hypothetically I am saying गोटे atom रो element रो atom काढ़वाटा easy नुहे, but मु hypothetically तुमको बुझावर ले कहूँचे. कौन सी हाइपोथेटिकल माने काना आमे मने करो. सो ई एलिमेंट रु आमे हाइड्रोजन एटम को बाहर के काढबार लागि चेष्टा करबा. सिमिलरली गुटे आयरन एटम को आमे आयरन एलिमेंट रु बाहर के काढबार लागि चेष्टा करबा. सो वी विल फाइंड वन इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट व्हेन आई एम removing one atom from hydrogen element, automatically I will get another atom with it. मु यदि गोटे एटम यदि बाहर को काढबी तो गोटे एटम बाहर की काढ़ी नहीं पारे, कोड़ा जे नहीं पारे. से जो गोटे एटम आसवा दैट विल बी वेरी अनस्टेबल. से काना करबा तार संगे आउ गोटे एटम नहीं के आसवा. बट आमे तो आयरन एलिमेंट के आमे आयरन एटम के देले आयरन एलिमेंट रु आमे काढमा से टाइम रे आमे गोटे आयरन एटम काढी पारमा. माने जदी ए केस रे मु जदी गोटे एटम बाहर के काढू छै पॉसिबल, बट ए केस रे मु जदी गोटे एटम जदी काढबी तार संगे आउ गोटे एटम मस्ट आसबा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड, सर व्हाई दिस इज सो. ये काहे कि लगी होची तार लागि आमे गोटे एग्जांपल दे मने पको. तमे गोटे एग्जांपल दे मने पको. सपोज गोटे क्लास रे हमर स्टूडेंट तो बहुत प्रकार रो अछन. तो आमे गोटे स्टूडेंट सपोज आई एम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इन माय क्लासरूम. तो मुई क्लासरूम भितरे पूरा इंडिपेंडेंट अच्छे बिकॉज आई एम गुड फिजिकली एंड मेंटली एज वेल. मते यदि कोन से टीचर कहबे यू गो आउटसाइड फ्रॉम क्लासरूम, तो मैं क्लासरूम रु बाहर के जाओ. सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आई कैन इजीली गो आउटसाइड. आई कैन गो आउटसाइड इजीली. मते कहारी सहाय्य नेबा के नाइ पड़े बिकॉज मुई इंडिपेंडेंट अच्छे बा मोर इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस अच्छे. एक्जिस्टेंस रो अर्थ होचे अस्तित्व. मोर स्वाधीन अस्तित्व थिबारु मुई जेतेबेले बाहर के जीवी से टाइम रे मते कहारी सहाय्य दरकार नै.
किंतु सपोज चिंता कर क्लासरूम रे गोटे हाइपोथेटिकल गोटे सिचुएशन रे नियो जे क्लासरूम रे फिजिकली चैलेंज्ड गोटे पिलाटे अछि फिजिकली चैलेंज माने काना तो मूवी मन को देखिथिबो सब दुईटा पर्सन रो बॉडी लागि जैथिबा सपोज माने मुंडो लागि जैथिबा सपोज देयर इज टू पर्सन गोटे स्टूडेंट अछि ए से स्टूडेंट संगरे काना अछि तार हेड आ गोटे बी स्टूडेंट संगरे लागि कि अछि ए आउ बी सो इन दिस केस तांगा कॉमन हेड अछि इटा तो पॉसिबल ना आमे जानि छु गॉड रो मिराकल बा गॉड करो इच्छा अनुसार भगवान को इच्छा अनुसार एंदी भी किछि किछि स्टूडेंट जन बा किछि छात्र बा किछि किछि पिला जन्म नेसन जेनकर हाथ कॉमन थाई पारे गोड़ कॉमन थाई पारे सॉरी हाथ कॉमन थाई पारे किबा हेड कॉमन थाई पारे से केस रे टीचर जदी ए के जदी बाहर के जीवन ले कहबे से टाइम रे ऑटोमेटिकली बी भी ए संग रे जीवन नै बिकॉज़ ए और बी रो बॉडी स्ट्रक्चर एंती आकर अछि तमर हेड टा कॉमन अछि ए जीवाल लागि हेले इने बी ऑटोमेटिकली जीवा किंतु मोर केस रे कना होतला मुई तो फिजिकली जे तो फिट अछि विथ द विश ऑफ गॉड भगवान को इच्छा अनुसार मैं फिजिकली जो फिट अछि मुई बाहर के जीवाल लागि हेले काहारे सहायता दरकार नाही पड़े तो से केस रे कहि परमा जे मोर आई हैव द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बिकॉज़ आई कैन गो आउटसाइड as my body structure is fit but in this case either A or B A के जदि हमें कहमा B तार संगरे जीवा बा B के जदि कहमा B A तार संगरे मस्ट जीवा because तांकर बॉडी स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न अछि मोर बॉडी स्ट्रक्चर जहा थिला A B रो बॉडी स्ट्रक्चर भिन्न अछि did you realize now तो हमें कहि पारमा ए केस रे A रो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नाही because A जतबे बाहर के जाउचे से B रो सहायता नउचे is it clear but when I am going outside I can go outside without the help of anyone so I will say I have independent existence and they don't have independent existence एबे काई थिले मोर इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस अछि बिकॉज़ मोर बॉडी स्ट्रक्चर इतांगनु अलगा बा मोर बॉडी स्ट्रक्चर फ्री अछि किंतु इतांगर बॉडी स्ट्रक्चर फ्री ना इतांगर बॉडी स्ट्रक्चर गुडे कॉमन हेड रे अछि तो सेति लागि इतांगर इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस नाइ नो मोर इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस अछि तो इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस अच्छे कि नहीं तले काना डिपेंड कला स्ट्रक्चर मोर स्ट्रक्चर फ्री थिला इता स्ट्रक्चर जॉइंट थिला तो सेति लागि तांगर इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस नाही किंतु मोर इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस अछि आई होप यू आर गेटिंग इट सिमिलरली हियर आल्सो हैपेंस ए जगह में काना कहमा हाइड्रोजन एटम जतले बाहर को जाउची तार संगे आ गुटे हाइड्रोजन एटम पळे आसुची किंतु ए जगह आयरन एटम जतले बाहर के जाउची से टाइम में गुटे आयरन एटम ही बाहर के आसुची तो आमर ए एग्जांपल के हमें नोटिस कर हमें कहि पारमा जे केन प्रकार एटम रो इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस अच्छे आ केन एटम रो इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस नाही हमें नोटिस करमा हाइड्रोजन एटम रो इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस नाही बिकॉज़ से जतबे बाहर के आसुचे ताके आ गुटे हाइड्रोजन एटम दरकार मस्ट करूची किंतु आयरन एटम रो इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस अच्छे तो सेति लागि से आयरन गुटे बाहर के आसी पारबा बुझियला तो सेति लागि तुमको टीचर माने हाई स्कूल लेवल ला कहितबे जे जितबे भी हाइड्रोजन आसबा तुम H ना लिखबो तुम H2 लिखबो तुम O ना लिखबो तुम O2 लिखबो तुम N ना लिखबो तुम N2 लिखबो क्यों तुम केही केबे नै पछ लिखिबो सर हम H2 काहे लिखमा किंतु आयरन लिखला बेले सर कहितबे खाली आयरन लिखबो निकेल लिखला बेले कहितबे खाली निकेल लिखबो इज इट क्लियर सोडियम लिखला बेले कहितबे खाली सोडियम लिखबो कोबाल्ट लिखला बेले कहितबे खाली कोबाल्ट लिखबो तार मीनिंग काना ई सब एलिमेंट रो जन एटम अछन सेही एटम मानकर इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस अछि किंतु हाइड्रोजन हला ऑक्सीजन हला नाइट्रोजन हला ई सब एलिमेंट मानकर एटम रो इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस नाही तो जेहेतु एटम मानकर इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस रही पारे नाइ भी रही पारे तो सेति लागि हम जतबे एटम रो डेफिनेशन लिखुछु हमु से दुईटा जिनिस मेंशन करबा के पड़बा मते लागु जे समस्त बुझी पाथिबो तो जेहेतु एटम रो दुही क्राइटेरिया रहउची तो सेति लागि मु डेफिनेशन लिखला बेले दुहीटा के मेंशन करै छै कारण सेटा एटम इज एन सिंपल फॉर्म ऑफ और इज ए लिखि देले बेटा एटम इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट व्हिच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जहार इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रही पारे नाइ भी रही पारे बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन आसला जी सर काई जे हाइड्रोजन एटम रो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नाइ न काई जे आयरन एटम रो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अछि सेटा जानबार लागि हेले हमको हाइड्रोजन एटम रो स्ट्रक्चर और आयरन एटम रो स्ट्रक्चर जानबा के पड़बा तो सेति लागि तो हम एटम स्ट्रक्चर पढुछु बुझियला हम कहि जे जे बॉडी रो स्ट्रक्चर जदी भिन्न भिन्न हुए
ताहले तांकर इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस रही पारे ना रही पारे। तो सिमिलरली हाइड्रोजन एटम रो स्ट्रक्चर आयरन एटम रो स्ट्रक्चर रो भिन्न हेथिबारु हाइड्रोजन एटम रो इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस नाही किंतु आयरन एटम रो इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस अछि। मते लागु छै एबे ऑटोमेटिकली आईडिया हे गलानो। तो दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, तांकर डिफरेंट स्ट्रक्चर थिबारु यांकर इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस नाइ नो किंतु इतांकर इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस अछि। मते लागु जे बुझी पाथिबो समझते। क्लियर। So these atoms does not have independent existence. Why then they don't have? तो सेटा जानबार लागि हेले हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर के पढ़वा के पड़वा। बुझियला? क्लियर। जस्ट वेरी फंडामेंटल में स्टार्ट करू छै, बहुत फंडामेंटल में स्टार्ट करू छै। पिला माने हम पछुतरे से नोट काना लेखमु, तमे नोट एकी लेखले भी सफिशिएंट है। खाली ने गुटे पॉइंट लिखि दबो। हाइड्रोजन एटम does not have तार independent existence नहीं, does not have independent existence। मतलब लागू छै समस्त बुझी पालथुबो। हाइड्रोजन एटम does not have independent existence, but ए जगह रे हम कहि पारमा आयरन एटम have independent existence। And why this is happening so? Because these two atoms or the atoms, every atoms or atoms of one element must be different structure from the atom of other element। जितकी एलिमेंट देखु जे तुम सब एलिमेंट रो एटम मान को कंपेयर कर देबो, सब एलिमेंट रो एटम मान को स्ट्रक्चर डेफिनेटली डिफरेंट रहेबा। तो सेति लाइक किछि एलिमेंट रो इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस रहू छे और किछि एलिमेंट रो इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस नाइ रहेबा। बुझियला? क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? ए जगह रे हमें आ गुटे पॉइंट डिस्कशन करना। मु जो गुटे फैक्ट तुमको परिचित करावा लागि चाहू छी। जस्ट के रिकॉल करो। ये तो गुटे काना कहैबा केमिस्ट्री लैंग्वेज रे, this is a pen I know, but with respect to chemistry language we will say this is a metal। ये तो गुटे मेटल हैला। ई मेटल का में स्मॉल पीस लास्ट रे बहुत स्मॉल पीस के आनला परे लास्ट रे जेंटा बढ़ी जीवा ताके हमें काना कहला एलिमेंट। तो ई पेन रो लास्ट रे जेंटा बढ़ी गला ताके कहला एलिमेंट। तुम निजे चिंता करो ई एलिमेंट बहुत सान हेतिबा कि बहुत बड़ हेतिबा। डेफिनेटली तर सब थ्रू सिंपल फॉर्म जिंदा पळे आसबो सेटा बहुत ही सान हेतिबा। एबे सेही एलिमेंट भितरे आहुरी छोट छोट पार्टिकल अछन। मोर पॉइंट बुझो। एलिमेंट तो बहुत स्मॉल हैला, जेने खाली हाथ धरवाटा ही बहुत कष्ट है, देखवाटा में भी देखि पारो बहुत छोटे थे भी माइक्रोस्कोप नहीं कि देखा जाई पारबा भी, बट एलिमेंट तो बहुत स्मॉल हैला। फिर मैं काना कहली ई एलिमेंट भितरे आहुरी स्मॉल पार्टिकल अछि और सही स्मॉल पार्टिकल को हम एटम ना दी तो निजे चिंता करो हमें एटम के नेकेड आई रे देखि पारमा की। कैन यू सी द एटम्स इन नेकेड आई? तो मैं एटम्स के नेकेड आई रे देखि पारबो की? नो, वी कैन नॉट सी दैट atoms in our naked eye। आमे एटम के नेकेड आई रे देखि नहीं पारो। इटा गुटे फैक्ट है। मन रखतो मुझे कहबो सर मला आयरन एटम देखाई दियो, आई विल बी अनेबल टू मेक इट सी। मुई तुमको आयरन एटम देखाई नहीं पारे। मुझे कहबो सर हमको निकेल एटम देखाई दियो, नो, बिकॉज़ एटम इतकी स्मॉल है हमें सेही एटम के नेकेड आई रे देखि नहीं पारो। बुझियला फर्स्ट थिंग। तो आमे एंता गुटे टॉपिक विषय रे पढमा जेन टॉपिक की मुई तुमको प्रैक्टिकली देखे नहीं पानी। सी हाइपोथेटिकल वे रे ही मुई पाठ पढाबी, कारण मुई तुमे एटम के नहीं देखि पारलो तारे मुई सेही एटम विषय रे पढमा बोली मुई नोट टॉपिक ना दीजे एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो सी द इंटरेस्टिंग हमें एंता गुटे टॉपिक रे चूज करना केमिस्ट्री रे जेन टॉपिक था की पर जहां विषय रे हम पढू छु ताके हमें देखि ही नहीं पार। इज इट क्लियर? तो इटा पहला माइंड रे फीड करो ये आमे एटम के देखी नहीं पार, बट आम पाखरे जितकी एविडेंस अच्छे जितकी एक्सपेरिमेंटल डाटा अच्छे से सबू के कंबाइन करी हमर एटॉमिक स्ट्रक्चर बना ही छी। तो डेफिनेटली तुम फील करबो जे जनकर विषय नहीं देखी माने देखी नहीं है माने पढ़वाटा तो डिफिकल्ट है, बट मैं गारंटी देबी तुम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक में एंड हैला बोली कहबी तुम जहां विषय जहां तुम देखी नहीं पारबा बट तार विषय तुम लंबा ऐसे तुम लिखि पारबो। इट इज आई गारंटी टू यू। क्लियर? खाली तुम क्लास रेगुलर वे रे अटेंड करबो, नोट मेंटेन करबो,
जिन जिन होमवर्क दिया होतवा से होमवर्क के तुम्हें प्रॉपरली एड्रेस जदि करि पारबो ताहले तुम डेफिनेटली एटॉमिक स्ट्रक्चर रे मास्टर ही पारबो. आई एम सेइंग you will be the master of atomic structure and you can help others to also solve the problem of atomic structure. बुझी हला इंट्रोडक्शन काना थिला हमें केन विषय पढ़वा के जाऊ. We are going to read about a topic or about a substance that we cannot see, that is your atom, and our topic is atomic structure. Clear? You will write all these things जेंती लिखा है जे एंती भी डायरेक्ट तुम्हें नोट रे लिखबो ताहले भी चलबा. There is no issue to this. Clear? Clear? It is clear to all? समस्ते एटा बुझी पालो. इटा होचे हम बेसिक टॉपिक जहा के हमें कहना एटॉमिक स्ट्रक्चर. एबे ए एटॉमिक स्ट्रक्चर रे हमें पहला डिस्कशन करमा फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ दिस एटम. एटम रो फंडामेंटल पार्टिकल काना काना अछि बा एटम कहा के नै कि तैयारी है जे सेटा हमें पहला डिस्कशन करमा. तो हमर एटॉमिक स्ट्रक्चर रो फर्स्ट टॉपिक हला फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम. ए एटम रो फंडामेंटल पार्टिकल काना काना. पहला तो बोले जिनिस बुझो जे फंडामेंटल पार्टिकल बोले काना जे आमे जदि एटम के जदि स्टडी करा गला त आजि जाए एटम के स्टडी जति करा ही जे till today there are minimum time कहू जे 35 particles are present inside the atom. ई एटम भितरे 35 टा टाइप रो 35 different types of particles are present inside this atom. चिंता करो जेन एटम के हमें देखि नहीं पारबा सेही एटम भितरे आहुरी 35 टा टाइप रो पार्टिकल प्रेजेंट अच्छा. So can you see it will be too difficult to study about all these particles? तो ये सब 35 टा पार्टिकल भितरु there are 3 particles which are most important. और से 3 टा पार्टिकल के हमें यदि स्टडी कर दमा ताहले हमें एटम विषय रे जानि दिमा. तो सेति लागि पूरा 35 टा पार्टिकल विषय रे पढ़वार दरकार नहीं. आंगु 3 टा पार्टिकल विषय रे पढ़वार अछि. आ से 3 टा पार्टिकल की जानि गले आ बाकी 32 पार्टिकल विषय जानवा दरकार नहीं. तो सेति लागि सेही 3 टा पार्टिकल के हम फंडामेंटल पार्टिकल बोली के कहला. सो आउट ऑफ दोस 35 पार्टिकल टिल टुडे डिस्कवर्ड आजि पर्यंत जेन 35 टा पार्टिकल डिस्कवर हेछि सेही 35 टा पार्टिकल भितरु 3 टा पार्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है. आ जेन 3 टा पार्टिकल विषय रे जानला परे हमें एटम के चिन्हि पारमा. तो सेति लागि से 3 टा पार्टिकल के हमें फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम कोहासी. हाउ काना काना से 3 टा फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स are called fundamental particles of atom. Because ए पार्टिकल 3 टा के जानला परे हमको बाकी सब पार्टिकल विषय रे आ जानबार दरकार नहीं. तो सेति लागि से 3 टा पार्टिकल के फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम कोहा गला. तो हमर मेन फोकस रहबा इलेक्ट्रॉन विषय रे जानबाटा, प्रोटॉन विषय रे जानबाटा आ न्यूट्रॉन विषय रे जानबाटा. बुझियला काना हम जानबा जी हमें इलेक्ट्रॉन विषय रे पढमा, प्रोटॉन विषय रे पढमा आ न्यूट्रॉन विषय रे पढमा. तुम कहो सर रेस्ट 32 नो नॉट नेसेसरी. एक्चुअली मुई एमएससी पढ़ला तब भी ई 32 पार्टिकल विषय दरकार नहीं पड़े. से 3 टा पार्टिकल विषय रे जानि गले हमर एटम विषय रे हमर आईडिया पड़े आसबा. क्लियर? तो हमर पाखरे 3 टा पार्टिकल रहला. गोटे रहला इलेक्ट्रॉन, गोटे रहला प्रोटॉन आ गोटे हला न्यूट्रॉन. तार गोटे इलेक्ट्रॉन रो सिंबल हला E, प्रोटॉन रो सिंबल हला P, न्यूट्रॉन रो सिंबल हला N. क्लियर? मुई तुमको ई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पार्टिकल विषय रे गुटे पहला कंपैरेटिव वे रे तुमको बुझाबी बा गुटे हम टेबल टे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लेगिर बनामा जेनटा कि गुटे क्लियर कंपैरिजन थिबा. आ से कंपैरिजन में इथि नहीं करबी से खाली से टेबल रू एक्चुअली तुमे बहुत गुडा क्वेश्चन पाई पारबो. तो सेदिले मैं का करबी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के गुटे टेबल फॉर्मेट रे तुमको कंपेयर करी कि बुझाबी सो दैट तुमे तांकर भितर डिफरेंस ता बुझी पारबो. आ क्वेश्चन केनदा आसबा तो से क्वेश्चन भी निजे जानि पारबो जे क्वेश्चन ता काना हेई पारबो.
So now we will discuss about these three particles: electron, proton and neutron. So तुम काना करबो तुमर कॉपी रे एटा समस्त लिखि देबो तो एटाके कॉपी रे काना करबो गोटे टेबल टे बनेबो. You will make one table. और सेई टेबल रे काना करबा हमें टोटल 3टा कॉलम बनामा, 4टा कॉलम धरिनियो. So let's make 4 column of your copy. तुम कॉपी रे तुम काना करबो 4टा कॉलम तुम बने देबो. सेथ्रु गुटे कॉलम रे हमें इने इलेक्ट्रॉन विषय लिखमा हमें एंती ही करबो सुविधा हवा. आ गुटे प्रोटॉन विषय रे आ गुटे हमें न्यूट्रॉन विषय रे तुम डिस्कशन करमा हमें कंपैरेटिव वे करबो बोले थोड़े नोट टा ब्रीफ हवा और पढ़वा लगी इजी सहज लगवा भल भी लगवा. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रो सिंबल p, न्यूट्रॉन रो सिंबल हला n. हमें 1 बाय 1 इने कंपेयर करमा. पहला कंपैरिजन हमें करमा काना जे डिस्कवर बाय कहार किए डिस्कवर कर दैछ. मते लागु छे इटा तुम समस्त जानि भी थिबो 10th क्लास रे थिबा. इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन. Very easy question. It पचरा जैसी भी J.J. Thomson. Proton is discovered by E. Goldstein. Proton is discovered by E. Goldstein. Neutron is discovered by James Chadwick. तो पिला टीचर माने काना करसन इलेक्ट्रॉन रो पहला पैराग्राफ टे लिखबे, प्रोटॉन रो पहला पैराग्राफ टे लिखबे, न्यूट्रॉन रो पहला पैराग्राफ टे लिखबे. तो मैं सेंती नाही करी कि मैं का करली तीनटा के कंपेयर करके लिखली जेनटा के तुमको एग्जाम पूर्व पढ़वाटा सहज होबा. काना हवा इलेक्ट्रॉन विषय लिखले इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन, प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय E. गोल्डस्टाइन, न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक. काना क्वेश्चन ही बारबा हु हैज डिस्कवर्ड प्रोटॉन, हु हैज डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, हु हैज डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन. एका संगे तीनटा क्वेश्चन रो तुम नोट तुम पाखरे हे गला. नेक्स्ट तुम आगुटे अछि एक्सपेरिमेंट. केन एक्सपेरिमेंट रे आमर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को डिस्कवर करा हिची. इट इज आल्सो ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन. इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. डायरेक्टली कैथोड रे एक्सपेरिमेंट काना हम पढमा पछेगा. एक्चुअली एक्सपेरिमेंट पढवा जति इंपोर्टेंट है एटलीस्ट इ नाटा मन रखल बहुत जरूरी है. कैथोड रे एक्सपेरिमेंट रो इलेक्ट्रॉन रो डिस्कवर हेतिला. प्रोटॉन ता सेंती डिस्कवर हेतिला केनु एनोड रे एक्सपेरिमेंट रो. एबे तमर माइंड रे इ एक्सपेरिमेंट काना सदा नै चालू. एबे खाली जिनिसटा बुझो जे केन केन एक्सपेरिमेंट रो बाहरी छी. इ विषय रे हम डिस्कशन करमा, इ विषय रे हम डिस्कशन करमा. पहले जानि छ जे केन नो बाहरी छी. न्यूट्रॉन टाके सारा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कोहासी SCATTERING. स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहले भी चलवा. लेखा नहीं बे स्कैटरिंग बोली बट तुम लिखि देले बहुत बेटर है. स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रू तुमर न्यूट्रॉन टा डिस्कवर हेति. मैं तीन एक्सपेरिमेंट डिस्कशन करबी लेटर ऑन. आई विल डिस्कस ऑल दिस थ्री दैट एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट वन मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया इज अबाउट देयर चार्ज. अंको चार्ज काना हबा. चार्ज रो सिंबल काना के चार्ज रो यूनिट काना की कहि परबो. चार्ज रो यूनिट हला कूलम. इलेक्ट्रॉन रो चार्ज केते. इलेक्ट्रॉन रो चार्ज हला तुमर that is minus 1.602 into 10 to the power minus 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. 10 to the power minus 19 coulomb. This is the charge of electron. It value bujhbai parba. So the charge of electron is minus 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. Interesting इटा है इलेक्ट्रॉन रो चार्ज जितकी प्रोटॉन रो भी चार्ज सेतकी दुहु लुको समान चार्ज. इटा एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड कोहा होची. दिस इज द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड आई एम सेइंग. आउ प्रोटॉन रो भी चार्ज सही समान मैग्नीट्यूड हबा किंतु साइन ऑपोजिट हबा. प्रोटॉन रो साइन हे दिबा पॉजिटिव 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. सही समान मैग्नीट्यूड रहबा. मैग्नीट्यूड माने परिमाण समान परिमाण हबा बट दुही लुकर साइन ऑपोजिट हबा. गोटे नेगेटिव गोटे हबा पॉजिटिव. सेथिले कोआसी इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. काई थिले प्रोटॉन रो चार्ज पॉजिटिव एनोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ला बेला हम डिस्कशन करबा. काई थिले इलेक्ट्रॉन रो चार्ज नेगेटिव आमे कैथोड रे पढ़ला बेला हम डिस्कशन करबा एक्सपेरिमेंट पढ़ला बेला. एबे इजीली तो बाइटा ई वैल्यूटा मन रखि पाबो.
बट न्यूट्रॉन रो कोनसी प्रकार चार्ज नहीं देयर इज नो चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन बस न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन रो चार्ज के हमें जीरो कहि पारमा इने आ गुटे पॉइंट में ध्यान देबो ई चार्ज के बेले बेले माने कॉमन जे समान चार्ज रहउचे दुही लोक खाली मैग्नीट्यूड जेतो अलग अलग रहउचे इता के अप्रोक्सीमेटली -1 हेतले निया गला तो होल नंबर निया गला एंदा डेसिमल नहीं रखती की जेतो हम चार्ज के समान ही देखाबार अछि क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू जदी पचला इटा ही लिखबो सिमिलरली इता के भी समान समान मैग्नीट्यूड है माने इतर भी सही 1 है खाली साइन टा पॉजिटिव है +1 इधर -1 इटा ई दुही वैल्यू समान में से बट खाली मैं तुमको मैग्नीट्यूड एग्जैक्ट वैल्यू के नहीं है कि अप्रोक्सीमेटली कहना है -1 और इधर हमें कहना +1 तो मैं से सिग्निफिकेंट फिगर कांसेप्ट भी इथरे नहीं लगाओ खाली निया गला जेहेतु दुही को साइन खाली ऑपोजिट होउजे तो इतर के हमें साइन नेगेटिव देला या पॉजिटिव देला और 1 1 वैल्यू इधर रैंडमली निया हिची माने इटा किंतु एग्जैक्ट वैल्यू तुमको पचला व्हाट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि पचला यू विल नॉट से 1 you will say -1.602 into 10 to the minus 19 what is the charge of proton यदि पचला you will say plus 1.602 into 10 to the minus 19 coulomb another very important is mass का यार हैला 9.11 into 10 to the power minus 31 kg ध्यान दियो mass of electron is 9.11 into 10 to the power minus 31 kg this is the mass of electron ये हला इलेक्ट्रॉन रो मास केते 9.11 into 10 to the power minus 31 kg similarly proton रो मास हला 1.672 into 10 to the power minus 27 kg ध्यान दियो 1.672 into 10 to the power minus 27 kg this is the mass of proton ଆଉ ଆମେ जे mass of neutron जे आसमा तार वैल्यू हबा 1.672 जगह रे खाली 5 पले आसबा into 10 to the power minus 27 kg तो पिला माने एडी नोटिस करो इलेक्ट्रॉन रो मास केते 10 to 9.11 into 10 to the minus 31 kg proton रो मास केते 1.672 into 10 to the minus 27 kg तो गुटे है -31 गुटे है -27 केनदा बड़ वैल्यू है -27 बड़ कि -31 बड़ -27 बड़ गुटे -27 माने बुझी होचे तो एटा माइनस तळे आहुरी डिवाइड हैला आहुरी चारटा सुन एक्स्ट्रा डिवाइड हेची तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू और नॉट नहीं सिथिले कहला जे प्रोटॉन रो मास ता इलेक्ट्रॉन रो मास रु अधिक है आ एप्रोक्सीमेट वैल्यू नेबार लागी ई वैल्यू के यदि जीरो निया गला नेग्लिजिबल -31 में बहुत ही कम है नेग्लिजिबल माने तर एप्रोक्सीमेट मास के जीरो लिया गला जीरो रु हायर वैल्यू केंडा यदि हम देखे जीरो नेला जीरो रु हायर वैल्यू केंडा जीवा इतर एप्रोक्सीमेट मास के जीरो रु हायर वैल्यू 1 निया गला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रो मास समस्त बुझी पालो इलेक्ट्रॉन रो मास 0 हैला एप्रोक्सीमेट वैल्यू ता 0 हैला इटा ला एग्जैक्ट वैल्यू प्रोटॉन रो एप्रोक्सीमेट मास ता 1 हैला एबे समस्त प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर करो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हम कंपेयर करमा इतर वैल्यू केते 1.672 into 10 to the minus 27 यार वैल्यू केते 1.675 into 10 to the minus 27 ये भी 10 to the minus 27 ऑर्डर रे अछि ये भी 10 to the minus 27 ऑर्डर रे अछि तो इतर एप्रोक्सीमेट वैल्यू यदि 1 हैला जेना 1.672 रो 1.675 रो भी एप्रोक्सीमेट वैल्यू केते हबा हम यदि एप्रोक्सीमेट वैल्यू के जिमा तो इतर भी एप्रोक्सीमेट वैल्यू का हमें 1 ही कहि पारमा कारण तीनटा डेसिमल ले जि 2 और 5 भीतर डिफरेंस के आसी के तो एप्रोक्सीमेट वैल्यू जे हम देखमा प्रोटॉन रो एप्रोक्सीमेट मास 1 है न्यूट्रॉन रो एप्रोक्सीमेट मास के भी हमें एप्रोक्सीमेट वैल्यू आकर 1 हैला किंतु यदि हम एग्जैक्ट वैल्यू के देखमा कार मास अधिका हबा एग्जैक्ट मास के तुम कंपेयर करबो न्यूट्रॉन रो मास का प्रोटॉन रो मास लु स्लाइटली ग्रेटर हबा यू कैन नॉट से ग्रेटर देन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मास इज ग्रेटर देन प्रोटॉन कहिले बोली जीवा बहुत कम अधिका अछि बिकॉज़ 672 अछि ना 675 अछि तो ई लाइन रो भी मीनिंग अछि तुम कहा गला न्यूट्रॉन मास इज ग्रेटर देन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मास इज स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट और व्हिच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट न्यूट्रॉन मास इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन दैट स्टेटमेंट इज वेरी वेरी करेक्ट बुझियला इटा एकानी एग्जैक्ट मास के जला आसमा
इटा 6.5 होचे इटा 6.672 होचे तो ई पॉइंट लिखि दे काई पॉइंट के निगे क्वेश्चन आइसी जे न्यूट्रॉन मास बा एग्जैक्ट मास लिखि दबो you can write exact mass of neutron is slightly greater than that of proton मस्त गोटे पॉइंट लिखि दबो मन ध्यान दबो एग्जैक्ट मास करे एप्रोक्सीमेट मास तो समान है exact mass of neutron is slightly greater than that of proton रो मास को स्लाइटली ग्रेटर हवा एग्जैक्ट मास का एप्रोक्सीमेट मास तो 1 ही हवा आ इटा एक्चुअली एकी इंफॉर्मेशन बहुत इंपोर्टेंट है इनु बहुत बड़े क्वेश्चन पचरा जवा जेने कि एग्जैक्ट चार्ज केते एग्जैक्ट मास केते तापरे न्यूट्रॉन रो मास प्रोटॉन रो मास पे केते डिफरेंस है स्लाइट डिफरेंस अछि कार मास सबथु नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन रो मास इटा को सिंबल आकार केते देखा आसी इलेक्ट्रॉन के केते देखा आसी एटा मन लिखि दो इलेक्ट्रॉन रो चार्ज के तळे लिखा जीवा मास के ऊपर लिखा जीवा इटा सब फॉर्मेट है तो इलेक्ट्रॉन रो चार्ज के तळे -1 चार्ज एप्रोक्सीमेट रूल हम लिखो ये रिप्रेजेंट को वाली चाहिए इलेक्ट्रॉन केते रिप्रेजेंट करि पारबो एप्रोक्सीमेट चार्ज है -1 तार मास है 0 तो इलेक्ट्रॉन के ई आकार रिप्रेजेंट करा जाय एक्चुअली इने लिखितले बेटर रहिता बट देखा ना जाय बोली मु ई आकार लिखु जे ई -1 0 बेले जहा इलेक्ट्रॉन बेले ताहा से फॉर्मेट अनुसार प्रोटॉन के केले सिंबल करा जाय प्रोटॉन के करा जाय p चार्ज हला 1 मास हला एप्रोक्सीमेट 1 ई पार्टिकल सिंबल दला बेले एप्रोक्सीमेट वैल्यू मन लिखा जाय पारबा सेने न्यूट्रॉन के केले लिखा जाय पारबा न्यूट्रॉन एप्रोक्सीमेट वैल्यूटा न्यूट्रॉन रो बा न्यूट्रॉन पार्टिकल सिंबल केंदी हबा न्यूट्रॉन चार्ज केते अछि 0 तळे चार्ज रहछि मन रखितो आ ऊपरे मास रहबा मास केते अछि एप्रोक्सीमेटली 1 ध्यान रखो पार्टिकल रो सिंबल टा रहला आ तळे इडा पार्टिकल रो सिंबल इना रहबा x धरने पार्टिकल हला इलेक्ट्रॉन हेबे प्रोटॉन हेबे न्यूट्रॉन हेबे लेफ्ट हैंड साइड रो तळे चार्ज रहछि आ लेफ्ट हैंड साइड रो ऊपरे बा किछि बहेरे राइट हैंड साइड रो ऊपरे टॉप रे मन रखितो ऊपरे दे दिसि मास तळे चार्ज ऊपरे मास तमे इने भी एक्चुअली सिंबल के लिखि देले बेटर दिखता I hope you are clear about the fundamental particle of atom. एबे तोर माइंड रे ई एक्सपेरिमेंट के नेगी बेसिक कॉन्जिनेस नै रहू इतार विषय में डिस्कशन करमा पहला एकी इंफॉर्मेशन तमर माइंड रे फीड हे जाऊ जे एटम रो तीनटा फंडामेंटल पार्टिकल अछि काना सेटा गोटे हला इलेक्ट्रॉन गोटे हला प्रोटॉन आ गोटे हला न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टाइन न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इलेक्ट्रॉन इज discovered from which experiment cathode ray experiment proton from anode ray experiment neutron from scattering experiment na alpha ray scattering कहले भी चलबा चार्ज इलेक्ट्रॉन रो चार्ज और प्रोटॉन रो चार्ज रो मैग्नीट्यूड समान रहबा किंतु साइन ऑपोजिट रहबा यार वैल्यू हला 1.602 into 10 to the minus 19 कूलम यार वैल्यू हवा 1.602 into 10 to the minus 19 कूलम खाली माइनस और प्लस रो डिफरेंस है किंतु यार चार्ज तो 0 है मास कहते 9.11 into 10 to the minus 31 kg यार वाला मास 1.672 into 10 to the minus 27 kg यार 1.675 into 10 to the minus 27 kg इटा एग्जैक्ट मास के नहीं क्योंकि अप्रोक्सीमेट इटा बहुत नेग्लिजिबल है 0 नहीं आगला इता में जे तो अधिकार है 0 रो अधिकार है 1 इता बेसी डिफरेंस रहने से अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो समान है क्योंकि एग्जैक्ट मास के जे हमें जिमा एग्जैक्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन बुझियला क्लियर ए कांसेप्ट के नै कि मु नेक्स्ट क्लास रे किछि क्वेश्चन डिस्कशन करबी देखबो जे केनती क्वेश्चन पचरा जाय पारबा इजी क्वेश्चन है खाली तुम एती स्टडी कलो ताले बहुत तुमर माने मन रहि दिबा एक्सपेरिमेंट के नै एबे तुम ट्रेस नै रहो खाली एक्सपेरिमेंट रो नाम मन रखि दो हम ताके नै बहुत कम क्वेश्चन आसी क्लियर आई होप यू आर गेटिंग इट तो आज इस क्लास में पढ़ला जे एटॉमिक स्ट्रक्चर कांति लागि पड़सु और एटम रो फंडामेंटल पार्टिकल विषय हम एबे डिस्कशन करी सारी छु आई होप यू आर गेटिंग इट ओके बुझियो होचे एतकी तुम समस्त फेयर नोट रे लिखि देथबो इना मते नै लागबा किछि डाउट थिबा बडिया जदी किछि डाउट रहबा तुम WhatsApp ग्रुप रे बाहे कमेंट बॉक्स रे लिखले भी मु WhatsApp रे आंसर दे पारबी बट तुम WhatsApp ग्रुप रे लिखले भी तुम डायरेक्ट आंसर पाई जी पारबो ई सबुटा नोट तुम समस्त सीरियली तुम लिखि जाउथबो तुम ने कहवाले चाहेबी काल की रिजल्ट बाहरवा तुम प्रगति कॉलेज के आसबो तुमको समस्त मे भी पूरा सेपरेट ट्रीटमेंट करा जाई पारे तुमको सेपरेट ग्रुप रे रखा जाई पारे जेने कि ई सब माने और रिपीट नाही होई मे बी इटा हम फ्यूचर कथा कहू जे मोर तरफ रु कहू जे फ्यूचर रे काना ही पारे तुमको काना एडवांटेज मिलबा एबिटू क्लास करबार एबिटू क्लास करबार एडवांटेज तुमको इटा मिलबा
तुमको आगु पहला तुम सिलेबस एंड हवा के जाउची तो सेथि लागि एबेठू तुम नोट्स लिखवा स्टार्ट कर दो तो क्लियर एज यू आर पेइंग यू हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस एकी इंफॉर्मेशन तुम समझते एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखि देथो थैंक यू ओके थैंक यू टू स्टूडेंट्स